آج ایلڈر اسٹافر نے خدا کا زندہ کلام سنانا ہے اور اگلے سنڈے ایلڈر برم نے، تو میں آپ کی زوردار تالیوں میں خدا کے خادم کو ایلڈر اسٹافر کو ویلکم کرتا ہوں کہ آئیں اور آپ کو قرآن کا زندہ کلام زوردار تالیاں۔ ہاللیلویا۔ خدا کے قادر پوتر اور فاتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آپ تشریف رکھیں۔ آج کا جو کلام ہے وہ ہماری زندگیوں کو ایک مضبوطی دے گا، ہماری زندگیوں کو اور زیادہ مضبوط کرے گا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور کتنے ایماندار ہیں؟ ذرا اپنا ہاتھ دکھائیں۔ سبھی ایماندار ہیں۔ آج کا جو کلام ہے وہ ایمان ہے۔ آج کا ٹاپک ایمان کے اوپر ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ایمان جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہماری زندگیوں کو ایمان ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے پولس رسول کا تیموتھیوس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا دوسرا خط، چیپٹر نمبر 4 اور آیت نمبر 6۔ دوسرا تیموتھیوس پولس رسول کا لکھا گیا خط، چیپٹر نمبر 4 اور آیت نمبر 6۔ خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ خدا کا بندہ پولس رسول ہمیں ایمان کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا اور میں اچھی کشتی لڑ چکا اور میں نے دوڑ کو ختم کر لیا اور میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عدل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن پہنائے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو جو اس کے ظہور کے آرزومند ہوئے۔ آمین۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھا گیا اور سنا گیا، خدا کی خاص برکت چاہتے ہیں۔ چند لمحات کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا میں وقت دیں گے۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی جلالی پتا، تو جو جہاں جلال کا بادشاہ ہے، تو جو ایمان کا بانی ہے، تو جو ہماری زندگیوں کے اندر ایمان کو پیدا کرتا ہے،
تو ہم ایمان کرتے ہیں کہ تو سچا اور زندہ خدا ہے، تو جو قبر موت پر فتح پا کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والا پہلا اٹھا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ تو ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے۔ اور خدا تو نے قبر موت پر اور عالم ارواح پر فتح پائی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے خدا ناظرین۔ تو جو ایمانداروں کا باپ ہے اور ایمان پیدا کرنے والا ہے، ہماری زندگی میں جب معجزات ہوتے ہیں اور جب ہم آپ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام کے اندر بہت سارے معجزات کو دیکھتے ہیں، بہت سارے ریفرنس ہمیں ملتے ہیں، تو خدا ہمارے اندر ایک ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، مضبوط ہوتا ہے ہمارا ایمان آپ کے کلام کو پڑھنے سے۔ تو زندہ پاک خدا آج کا جو کلام ہماری زندگیوں میں بیچ ایمان کھویا ہے، تو وہ ہماری زندگیوں کو کہ ایمان کو ہمارے ایمان کو بہت سارا مضبوط ہے، تو خدا زندگیاں نجات پائے تیرے کلام کے وسیلہ سے، چنا اور بڑی برکت مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے آج ہم نے سیکھنا ہے ایمان کے بارے میں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کے کلام ہاللویا خدا کے کلام کے اندر ہم نے آج پڑھا ہے پولس رسول کی کا خط تیموتھیوس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا بندہ پولس رسول تیموتھیوس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے اور اپنے دور خدمت کے بارے میں بتاتا ہے، تنبیہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے تو اچھی دوڑ لی ہے، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، میں نے ایمان کو ڈاواڈول نہیں ہونے دیا۔ تو ہم اپنی باری کے بارے میں سیکھیں گے، اپنے بارے میں سیکھیں گے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہم نے ایمان رکھا ہے یا نہیں رکھا، ہم نے اسے محفوظ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ بہت سی باتیں ہم آج سیکھیں گے، آدھا گھنٹہ وقت لوں گا۔ تو خدا کا کلام آج ہماری زندگیوں کو ایمان کی ایک مضبوطی دے گا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں پولس رسول سے ہی شروع کروں گا کہ وہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اب ہم جائیں گے پہلے خط کی طرف، تیموتھیوس کی کلیسیا کے نام وہ بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ پہلے جو آیت پڑھی گئی ہے اس کے اندر خدا کا بندہ پولس رسول اپنے بارے میں بتاتا ہے۔ اب وہ جو پہلا خط لکھا گیا ہے اس کے اندر وہ ہمارے بارے میں بتائے گا، خدا کا کلام ہمیں بتائے گا کہ ہمیں ایمان کو کیسے مضبوط رکھنا ہے۔ تو نکالیے میرے ساتھ پہلا خط تیموتھیوس کا، اس کا چیپٹر نمبر 6 آیت نمبر 11 سے خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے اور بڑی ہی آجزی کے ساتھ سنیں گے، باتیں نہیں کریں گے۔ مگر اے مرد خدا، تو ان باتوں سے باغ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ میں اس خدا کی جو سب چیزوں کو زندہ کرتا ہے اور مسیح یسوع کو جس نے پلاطوس کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا گواہ کر کے تجھے تاکید کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اس ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ، جیسے وہ مناسب وقت پر
नुमाया करेगा, जो मुबारक और वाहिद हाकिम, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद है। आमीन। Amen. खुदा के कलाम में से आज हमने सीखना है ईमान के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो ईमान के ऊपर ही बात होगी। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें खुदा का कलाम बताता है कि हमने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़नी है और ईमान को उस हमेशा की जिंदगी पर कैसे कब्जा करना है वो हम आप सीखेंगे। खुदा का बंदा पौलुस रसूल बहुत महारत के साथ, बहुत जज्बे के साथ, बहुत दलेरी के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही दीनदारी के साथ और रास्तबाजी के साथ खुदा के कलाम की मुरादी कर रहा था। और बहुत से खतूत खुदा का बंदा बहुत सी कलीसियाओं के लिए लिखता है, खुदा के हुक्म के मुताबिक बहुत सारा लंबा सफर भी करता है, लोगों के पास भी जाता है, लोगों को खत भी लिखता है, जो आज हम खुदा के कलाम की मानद देखते हैं और पढ़ते हैं और हमारी जिंदगियों के अंदर एक ईमान की मजबूती पैदा होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, पौलुस रसूल के ईमान के बारे में हम पहले सीख लेते हैं कि खुदा का बंदा कैसे ईमान को मजबूत रखता है, तो कैसे खिदमत का आगाज करता है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल एक फरीसी है, शरीयत का पाबंद है, शरीयत के अंदर बहुत मजबूत है, वो बहुत ईमान रखता है शरीयत के अंदर, शरीयत के ताबे है और बहुत पढ़ा लिखा है, पढ़ी लिखी फैमिली के साथ उसका ताल्लुक है और बहुत अमीर फैमिली के साथ उसका ताल्लुक है। और उसका जो आबाई घर है, उसका आबाई ताल्लुक जो है वो तरसीस से है। जो तरसीस है वो आज के ज़माना के अंदर मुल्कों की डिवीजन हो चुकी है, मुल्क कंट्री में बढ़ चुके हैं, तो वो जो तरसीस है वो तुर्की के अंदर आता है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, वो तुर्की तरसीस में रहा, वो तरसीस में पला और वहाँ पढ़ता रहा और जब जवान हो गया, वो काबिल हो गया, वो इब्तदाई तालीम जो है वो पा चुका, तो उसके माँ बाप जो है उसे यरूशलेम भेज देते हैं, वहाँ कहानत की खिदमत के लिए और तालीम पाने के लिए। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, वो कहानत की तालीम पाता है, बहुत मजबूत हो जाता है शरीयत के अंदर, तो लोगों को शरीयत के बारे में तालीम भी देता है। और जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं तो खुदा यीशु मसीह का जो खिदमत का दौर है वो शुरू होता है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, तो खुदा यीशु मसीह के मरने और जीने के बाद और आसमान के ऊपर चले जाने के बाद वो बहुत तेजी के साथ काम करना शुरू कर देता है, वो लोगों को पकड़ना शुरू कर देता है, हलाक करना शुरू कर देता है। ये है ईमान की मजबूती जो शरीयत के अंदर पाई गई। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, फिर खुदा उसे चुनता है, फिर खुदा यीशु मसीह उसे अपने कब्जा में कर लेता है, उसके ईमान को अपनी तरफ ले आता है, खुदा उसके ऊपर मौजज़ात करता है, खुदा उसे दिखाई देता है जो ये सबसे बड़ा मौजज़ा देखा गया है कलाम मुकद्दस के अंदर। बहुत सारे लोग पौलुस रसूल के साथ जाते हैं लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन उन्हें खुदा यीशु मसीह दिखाई नहीं देता। पौलुस रसूल अंधा हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे खुदा यीशु मसीह दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह अंधों को भी दिखाई देता है, मुर्दों को भी दिखाई देता है। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर खुदा का बंदा पौलुस रसूल खुदा यीशु मसीह की बारे में सीखना शुरू करता है। उसके अंदर एक खुदा यीशु मसीह के बारे में ईमान आता है, वो ईमान में बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके अंदर बहुत तेजी के साथ ईमान जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा के बंदा पौलुस रसूल
सी कलीसियाओं के अंदर जाता है, बहुत सी अजियत भी उठाता है और उसे ज़लील भी किया जाता है और मार कुटाई भी की जाती है, तो मेरे अजीज भाई और बहनों, वो फिर भी ईमान को मजबूत रखता है। वो खुदा के अंदर मजबूत से मजबूत होता जाता है। वो अपना नफा जो है उसे छोड़ देता है, अपने कारोबार को छोड़ देता है। मैं जब खुदा के बंदा पौलुस रसूल की जिंदगी के बारे में पढ़ता हूँ और जब सोचता हूँ तो मैं रोने लगता हूँ। मुझे उनकी जिंदगी पर बहुत रोना आता है। पौलुस रसूल की जिंदगी में बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं रोने लगता हूँ। वो अपना घर बार छोड़ देता है, वो अपना मालो मता छोड़ देता है, वो खुदा उनकी नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए, लोगों को बताने के लिए निकल पड़ता है। मुझे इसलिए रोना आता है कि हम अपने घर के अंदर रहकर, अपने शहर के अंदर रहकर, अपनी कलीसिया के अंदर रहकर, अपने बहन भाइयों के साथ रहकर, अपने बीवी बच्चों के साथ रहकर भी खुदा के नाम को इज्जत और जलाल नहीं दे सकते। यह है हमारे ईमान की मजबूती। हमारे अंदर इतना ईमान है। अब मैंने जब आपसे पूछा कि कितने लोग यहाँ ईमानदार हैं, तो सभी ने हाथ बुलंद कर दिया। तो अभी आपसे सवाल किया जाएगा कि आप ईमानदार हैं और कितने हैं, और आप ईमान की जो कुछ लड़ाई है वो कैसे लड़ रहे हैं। वो मैं जब ईमान की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मैं भी अपने अंदर देखता हूँ कि मैं कितना ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, पौलुस रसूल के बारे में हम आज बात कर लें, फिर आगे चलें। वो बहुत अमीर आदमी है, वह अपना बिजनेस है, घर का बिजनेस है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो उस चीज को छोड़ चुका है, अपना घर बार छोड़ चुका है, मुनादी के लिए खुदावंद का अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए लेकर निकल पड़ता है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, मैं सोचता हूँ कि जब वो कलीसिया के अंदर जाता होगा तो कैसे जिंदगी बसर की होगी, कैसे अपने आप को इतनी देर खुदा के कलाम के लिए इस्तेमाल किया होगा। बहुत मुश्किल वक्त है। हम किसी को अपनी बीवी को घर के अंदर जरा सा प्रेशर डालें तो वो भी हमारे ऊपर प्रेशर डालना शुरू हो जाती है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, उस बंदे ने तो परवाह नहीं की, उसने तो शादी नहीं की, उसने तो खुदा के कलाम को इज्जत दी है, हर काम को उसने तर्क किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ ईमान को मजबूत रखा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में हमने आज पढ़ा पौलुस रसूल के बारे में कि उसने कहा कि मैं तो अच्छी कुश्ती लड़ चुका और मैंने उस दौड़ को खत्म कर लिया। और अब मैंने हमारे लिए भी जो आयत पढ़ी है, हम उसके बारे में सीखेंगे कि ईमान को कैसे हमने महफूज रखना है और कैसे हमने दौड़ को दौड़ना है और कैसी कुश्ती है जो वो लड़नी है, हम वो कुश्ती कैसे जीत सकते हैं। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा के कलाम में से मैं पढ़ रहा था, टॉपिक ईमान के बारे में मैं सीख रहा था, तो बहुत सारी आयत हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, वो मेरे सामने आए। मैं रात को 2-3 दिन पहले दुआ कर रहा था, मैंने चैप्टर उसी दिन से नोट कर लिया था जिस दिन से अनाउंस किया गया था पिछले संडे। तो मैं दुआ कर रहा था तो मुझे दुआ के अंदर एक महसूस होता है, खुदावंद मुझे कहता है कि ये वाली जो आयत है, ये वाली भी आयत है, तो इसे भी नोट कर, और ये वाली भी बात नोट कर और कलीसिया के सामने डिलीवर कर। हालेलुया, हालेलुया। तो ईमान की मजबूती के लिए खुदावंद ने मुझे मैसेज के लिए तैयार किया। तो मैं दुआ में ठहरा था तो खुदावंद ने मुझे बताया कि ईमान के ऊपर आपने कैसे कैसे लोगों को बताना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उन शहरों के बारे में जहां खुदावंद यीशु मसीह मुनादी के लिए जाते हैं, उनके बारे में मैं अब बताऊंगा आपको। तो मैं पढ़ के ही बताऊंगा आपको। मत्ती रसूल की इंजील में से
पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 और आयत नंबर 20। ये वो शहर हैं जिन्होंने खुदावंद के मौजज़ात तो देखे लेकिन ईमान नहीं लाए। तो अब पढ़ेंगे, सुनेंगे। वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसने अक्सर मौजज़े ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी, बल्कि ए खुरज़ी तुझ पर अफसोस, ए बैतसदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सदा में होते तो हटा तोड़कर और खाक में बैठ कर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सूर और सदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ए कुफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो अलमिरवा में उतर गया, क्योंकि जो मौजज़े तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम के इलाका का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ये वो शहर हैं जिन्होंने खुदा के मौजज़ात तो देख लिए, लोगों ने वहां शिफा तो पा ली, लेकिन ईमान नहीं लेकर आए, तौबा नहीं की। ईमानदार आदमी उस वक्त हो सकता है जब वो तौबा करेगा, तौबा करके खुदा के कलाम की तरफ रजू लेकर आएगा, तो वो ईमानदार हो सकता है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, ये जो 2-3 शहर हैं, उन्होंने खुदा के कलाम को, शहर नहीं है, शहर के अंदर बसने वाले लोग हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को नहीं माना, खुदा के मौजज़ात को नहीं माना, खुदा की हजूरी को नहीं माना। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें जरूरी है कि हम अपने अंदर ईमान की मजबूती लेकर आए। कैसे हम अपने अंदर ईमान की मजबूती लेकर आ सकते हैं? हमें खुदा के कलाम में से, वो मैं आयत पढ़ूंगा नहीं, खुदा के कलाम में मत्ती रसूल की अंजील में लिखा है, एक रोमी सूबेदार है, उसके घर के अंदर उसका नौकर जो है, उसका खादम जो है, वो फालिज पड़ चुका है, मफलूज हो चुका है। वो जो लोग हैं, रोम के लोग, उस वक्त हुकूमत इस्राएल के ऊपर रोम की है। वो सूबेदार को उस इलाका के अंदर सूबेदार ठहराया गया है, उसका खादम जो है वो मफलूज हो चुका है, पैरालाइज हो चुका है, वो हिलजुल नहीं सकता। और खुदा यीशु मसीह उस वक्त बहुत सारे मौजज़ात कर रहे हैं, मौजज़ात की धूम मच चुकी है, और वो रोमी सूबेदार खुदा यीशु मसीह के पास खूब चलकर आता है और कहता है कि ऐ खुदावन, मेरा खादम जो है वो मेरे घर के अंदर मफलूज है और बहुत तकलीफ के अंदर है और वो हिलजुल नहीं सकता। तो खुदा यीशु मसीह उसे कहते हैं कि मैं आऊंगा और उसे शफा दूंगा। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, रोमी सूबेदार का ईमान बहुत बड़ा है। वो कहता है कि ऐ खुदावन, अगर तू यहाँ से ही हुक्म सादर कर दे तो वो मफलूज जो मेरे घर में पड़ा है वो चलना फिरना शुरू कर देगा। हालेलुया। वो खुदा का बंदा रोमी सूबेदार खुदा यीशु मसीह के ऊपर ईमान ला चुका है, ईमान बहुत बड़ा है उसका। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह हैरान हो जाते हैं। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत सारे मौजज़ात कफरनहूम के अंदर किए गए, बहुत सारे मौजज़ात दूसरे शहरों के अंदर किए गए, उनमें तो ऐसा ईमान नहीं पाया गया। बनी इस्राएल के बहुत सारे इलाके हैं जहां खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि ईमान नहीं पाया गया। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, ये कफरनहूम का ही इलाका है, लेकिन वो बंदा कफरनहूम का नहीं है, वो रोम का है। वो उसने खुदा के ऊपर ईमान लेकर आया, ईमान को मजबूत किया, उसने तौबा की।
और खुदा यीशु मसीह से कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए, मेरे घर में आए। तो आज हम बहुत से बहन भाइयों को देखते हैं, वो बहुत सारे परहेजगार हैं, बहुत दीनदार हैं, बहुत रसबाज हैं, लेकिन जो सही रास्तबाज है वो तो खुदा उनसे कहते हैं कि हम इस लायक नहीं कि तू हमारे घर में आए। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदावंद से कहते हैं कि आप यहाँ से ही हुक्म सादर कर दें तो हमारा जो खादिम है, जो हमारा नौकर है, वो शिफा पा जाएगा। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, इसी चैप्टर के अंदर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ताज्जुब करते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ऐसा ईमान तो मैंने बनी इस्राएल के किसी इलाके में नहीं देखा। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, फिर खुदावंद ताज्जुब के साथ कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम से लोग इब्राहिम, इसहाक और याकूब की बादशाही में शरीक होंगे, लेकिन जो बात इस्राएल के बेटे हैं, जो बादशाही के वारिस हैं, वो बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, जो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है वो कभी बदल नहीं सकता। खुदावंद ने कुफरनहूम को आलमे रुआ में उतारा है, ये कभी बदल नहीं सकता। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें ईमान को कैसे मजबूत करना है, आखिरी बात करूंगा, हमें ईमान को कैसे मजबूत करना है और ईमान की कैसे कुश्ती लड़नी है और कैसे दौड़ में दौड़ना है और उसे खत्म करना है। कोई पता नहीं हमारा वक्त जो है वो कब आ जाए। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, हम अपने घरों के अंदर पहले जाएंगे और अपने अंदर देखेंगे कि हमारे अंदर कितना मजबूत ईमान है, कितना मेरा ईमान मजबूत है। मैं अपने बड़े भाई से बदतमीजी तो नहीं कर रहा, मैं अपने माँ बाप से बदतमीजी तो नहीं कर रहा, मैं अपनी बड़ी बहनों से बदतमीजी तो नहीं कर रहा, या उनसे झगड़ा तो नहीं कर रहा। मैंने यहाँ तक के लोग भी देखे हैं कि वो बेटे जो हैं वो बाप से झगड़ा करते हैं और बाप जो है वो बेटों से झगड़ा करते हैं। ये ऐसा ईमान हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवादी का, हलीमी का, दीनदारी का, ये सब ईमानदारी के अंदर आते हैं। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ नहीं ਦਿੰਦਾ। पैसे ऐसा है कि नहीं। मेरी अक्सर भाई साहब से बात होती रहती है, जिनसे हमने कुछ कैश रिकवर करना होता है, लेकिन वो देते नहीं है। लेकिन हम उनसे झगड़ा नहीं करते, छोड़ देते हैं उनके हाल के ऊपर। खुदावंद बदला लेता है। लेकिन हम जब पढ़ते हैं दुआ रबानी, हर रोज पढ़ते हैं, तो उसके अंदर तो हम बड़ा चम के लफ्ज जो खुदावंद ने हमें सिखाया है वो इस्तेमाल करते हैं कि ऐ हमारे बाप, जिन जैसे अपने गुनाहगारां ਨੂੰ माफ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? बिल्कुल नहीं। मेरे अजीज भाई और बहनों, हम अपने गुनाहगारों को माफ नहीं करते हैं, हम झूठ बोलते हैं खुदा यीशु मसीह से, अपने खुदावंद से हर रोज झूठ बोलते हैं। हमारे अंदर ईमान है लेकिन महफूज नहीं है। हर एक जिंदगी अपने अंदर देखे कि उसके अंदर एक मौकुल फितरत कुव्वत पाई जाएगी, लेकिन उस वक्त पाई जाएगी जब वो ईमान को महफूज रखेगा। हलीमी के साथ, सब्र के साथ अपनी जिंदगी को बसर कीजिए। जो दुआ हम करते हैं, खुदावंद को हम पुकारते हैं, जब कहते हैं कि खुदावंद हमारे गुनाह माफ कर, जिस तरह हम अपने गुनाहगारों को माफ किया है, अपने कर्जदारों को माफ किया है। ਅਸੀਂ कर्ज ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਨੇ ਆ ਤੇ ਮੁਆਫ ਅਸੀਂ ਉਹ खुदा ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, लेकिन हमारे अंदर इस कदर ईमान है। और बहुत सी चीजें हैं और बहुत सी बातें हैं हमारी जिंदगी के अंदर। मेरे अजीज भाई और बहनों, एक बहन है जो दूसरी बहन से लड़ी है, झगड़ा उसका चल रहा है, ये है ईमान की मजबूती। जब आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने ईमानदार हैं, तो आप जल्दी से हाथ खड़ा कर देंगे, आप बताएंगे कि मैं अपनी बहन से, मेरा झगड़ा चल रहा है,
मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, मैं बहुत ईमानदार हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक भाई हाथ खड़ा करेगा और कहेगा कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ, बहुत रास्तबाज हूँ, मैं अपने भाई को नहीं बुलाऊंगा, मैं उसके साथ मेरा झगड़ा चल रहा है, मैं तो मरने ज्यों नहीं छड़ देंगा, मैं तो बुलाना ही नहीं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमारे अंदर ऐसा ईमान होना चाहिए कि हम अपने बाप से झगड़ा करें, अपने भाई से झगड़ा करें, अपने चचा से झगड़ा करें, अपने ताया से झगड़ा करें, अपनी माँ से झगड़ा करें। ये जो हमारी चाचियां हैं, ये ताइयां हैं, जो हमारे घरानों के अंदर हैं, ये हमारी सब माएँ हैं। तो हमें हलीमी के साथ, सबके साथ मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। हालेलुया। अगर आप ईमान की मजबूती चाहते हैं, ईमान को महफूज रखना चाहते हैं, ईमान को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें सबकी इज्जत करना होगी, हर एक के साथ मेल जोल करना होगा, हम आहंगी के साथ पेश आना होगा, भाईचारा दिखाना होगा, उनके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना होगा और उनकी दावत करनी होगी जो आपसे नाराज है। मेरे अजीज भाई और बहनों, अपनी खुदी का इनकार करना होगा। खुदा यीशु मसीह ने के पीछे बहुत से लोग मौजज़ात देखकर पीछे भागते हैं, उनके अंदर ईमान पैदा हो जाता है, वो भागना शुरू करते हैं और कहते हैं कि खुदा हम आपके पीछे चलेंगे, लेकिन खुदा कहता है कि अपनी खुदी का पहले इनकार कर और फिर मेरे पीछे खोले। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अपने कर्जदारों को मुआफ करना सीखे, अपने बहन भाइयों को मुआफ करना सीखे, तो फिर आपके अंदर ईमान की मजबूती पाई जाएगी, आप ईमानदार दिखाई देंगे। हमने सदूम और अमोरा के इलाके के बारे में सुना, पिछले अहदनामा के अंदर हमने सुना, पुराने अहदनामा के अंदर, कि उस शहर को गर्क किया गया, उसके अंदर कोई ईमानदार नहीं पाया गया जितनी तादाद बताई गई थी। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमारी कलीसिया के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे चर्च के अंदर बहुत सारे ईमानदार होने चाहिए, एक नहीं, सभी के सभी ईमानदार होने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर कलीसिया तरक्की करती है, फिर घराने तरक्की करते हैं, फिर लोग देखते हैं कि ये ईमानदार लोग हैं, ये रास्तबाज लोग हैं, ये खुदा यीशु मसीह के खून खरीदे गए लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो अजीज बहनों और भाइयों, खुदा के कलाम में से आज हमने सीखा है ईमान के बारे में, और ईमान को कैसे मजबूत रखना है। झूठ बोल के रखना है ईमान मजबूत नहीं। जो आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप उनसे किनारा तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें माफ भी आपको ही करना है। खुदा यीशु मसीह ने अपने कलाम मुक़द्दस में हमें बताया है कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया, और आदमियों को भी इख्तियार दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आदमियों को कैसे इख्तियार दिया गया है। खुदा यीशु मसीह ने लिखा है कलाम मुक़द्दस के अंदर, बताया है कि जो मेरे नाम से जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांध दिया जाएगा, जो मेरे नाम से जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोल दिया जाएगा। तो इख्तियार नजर आया, ये आवाज दो, इख्तियार नजर आया ये। आपको भी खुदा ने इख्तियार बख्शा है, आपको ये इख्तियार नहीं बख्शा कि किसी को मुआफ नहीं करना, किसी ने आपसे कर्ज ले लिया है तो उसे बार बार उसके घर जाना है, जाओ भाई साढ़े पैसे दे रही थे, तेरे पूछना नहीं फिर कि मेरे को पैसे देना है। मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें बहन भाइयों के साथ ये जो रुपया पैसा है, ये हमें बचाने की कुदरत नहीं रखता। अगर आपने बचना है तो खुदा के कलाम पर अमल करना है, ईमानदार होना होगा, रास्तबाज होना होगा। हम ऐशो इशरत की जिंदगी तो चाहते हैं, बहुत सारा रुपया पैसा चाहते हैं, घर चाहते हैं, महलात चाहते हैं, लेकिन ईमानदार नहीं होना चाहते। जब आप खुदा की बादशाही को ढूंढ लेंगे, जब उस बादशाही के वारिस बन जाएंगे, तो हमारी जिंदगी के अंदर जो खुदावंद फैसिलिटीज देना चाहता है वो हम नहीं जानते।
हमारी जिंदगियों को पता नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है कि जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो कौमें तुझे मिराज में दे दूंगा, वो जगह तुझे दे दूंगा, हर चीज तेरी हो जाएगी। मालो मता आपके पास कसरत से आएगा, रुपया पैसा आपके पास पानी के रेलों की तरह आएगा। आपको ईमानदारी के साथ खुदा के साथ भी मुखलिस रहना होगा। आज मैं एक आखिरी बात करूंगा और उसके बाद कलाम को एंड करूंगा। मैं हदिया नजराने के बारे में बात करूंगा। हदिया नजराने जब हम देते हैं, बड़े सोच समझ के ऐसी हदिया देने हैं। जी भाई तारा को भी कितने वाद ना चलाई जाए, जो वाद पा भी दिता है तो कहना पकाया दे दूँ, जी है ना। बड़ा सोच समझ के ऐसी खुदा दी कलाम दी वुसत नहीं जरा देने है ना। 50 रुपये अगर पाए ना तो सोच लेना यार 20 रुपये पाइए तो ये मेरे को वापस ले लेंगे। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, ये बहुत गौर तलब बात है। खुदा के कलाम में लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। अयो गल हो गई पादरियां ली भी ने उन्हें दिए दिल गल शुरू कर दी थी, फिर उन पैसे मंगना शुरू हो गया। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा के कलाम के मुताबिक चलना होगा। आपको हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलना होगा। हदिया नजराना है वो जो आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। टॉपिक के अंदर गल शामिल नहीं सी हदिया नजराने वाली, लेकिन करना पैगी, हो सकता है कि आगे मौका ना मिले। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, हदिये के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज ना किया करें। जितना नोट आपकी जेब में है, 50 का 100 का, वो खुदा की नजर करे, खुदा इंजील की वुसत के लिए दें। तो फिर देखें कि आपके पास क्या नहीं आता। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, सोचे कि यार असी साडा खुदा जड़ा है 10 रुपये ही मांगता, बस इससे ज्यादा नहीं मांगता। ना तो हम 10% देते हैं, ना दा यकी देते हैं, ना चर्च का हम रेंट देते हैं, ना हदिया नजराने। चलो चर्च का रेंट ना दो, दा यकी ना दो, तुसी उनका जिम्मेदार हो, उनका जिम्मेदार मैं हाँ। हदिये तो थोड़ी तादाद बढ़ा दो, 10 तो 20 ले आओ, फिर खुदा तुहानू 20 के बदले 20,000 देगा। फिर तुसी 20,000 लैके तो खुदा दे नाम की शुक्रगुजारी फिर भी नहीं तुसी करनी। तो खुदा के हालेलुया, हालेलुया। आप सबको खुदा बहुत बरकत देगा आज के कलाम के वसीला से। आमीन, आमीन। छोटी सी दुआ मांगेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा तू जो जिंदा जलाली है, तू जो आसमानी और रूहानी है, तू जो कादिर मुतलिक है, तू जो हल्ले मुश्किलात है, तू जो जलाल का बादशाह है, तू जो जिंदा खुदा है, तू जो जल्द आने वाला है, तू जो हमारी नजात का मालिक है, ईमान रखते हैं खुदम तू सच्चा और जिंदा खुदा है। खुदम तेरे पास अख्तियार है, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार आपको दिया गया है। ये कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि आपके पास गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। खुदावंद हमारी जिंदगियों को माफ कर और हमें बहाल कर और हमें बरकत दे कि हमारी जिंदगियों में एक ईमान की मजबूती आ जाए, हमारी जिंदगियों में ईमान बढ़ना शुरू हो जाए, कामिल ईमान हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाए। जिंदा आसमानी जलाले पिता चुना और बड़ी बरकत दे रहा मसीह यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, सब कुछ पा लेते हैं। आपकी भरपूर तालियों में हम खुदा के बंदा को दावत देंगे। आया